So, hi everyone, welcome back to another class. Today, we're going to tackle one of the most important and honestly one of the most misunderstood financial statement out there, statement of cash flow. So, when I was doing it for the first time, it was quite confusing for me as well. And it was like that frustration when your values cannot, when your values don't match. It's a very big headache, right? बहुत सर दर्द करता है जब वैल्यूज़ मिलती नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, ये फील होता है कि यार बहुत मुश्किल है, बट लेट मी टेल यू कि ऐसा नहीं है। once you complete this video, so you won't have any misunderstandings, or it would be quite easy for you to tackle all the cash flows questions. So uh, basically, now before we jump into solving the full question, I want you to spend a few minutes explaining why this statement even exists. Because once you understand the why, the how becomes much easier. So if you look at a company's income statement, वो it might show a huge profit. हो सकता है आप कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे देखो, कहीं देखो, आप देखो यार इसका तो बहुत ज़्यादा नेट प्रॉफिट है, तो ये तो कंपनी बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है, if it may have a profit like millions in net income, that looks great, right? बट हेयर्स द कैच। प्रॉफिट का मतलब नहीं होता कैश इन बैंक। प्रॉफिट का मतलब होता है वो आपको नेट प्रॉफिट हुआ, इसका ये मतलब नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं शो कर रहा कि आपके पास बैंक में कैश कितना है। ठीक है, जो बिलियनियर्स होते हैं उनके पास बिलियन कैश नहीं पड़ा हुआ होता, उनके पास शेयर्स में स्टॉक में बिजनेस होता है, वो बिलियंस होते हैं, वो वर्थ होती है बिजनेस की बिलियंस, बट उसके अकाउंट पे नहीं होते। सो बेसिकली बिकॉज ये सब कुछ होता है because of something called accrual basis of accounting. So under accrual accounting, what we do is that we record the revenue when it is earned, not when the cash is actually received. So a company could sell $1 million of goods on credit, and record that as a revenue or a profit, but it still have zero cash from the sales sitting in the bank today. ठीक है, अब same goes for expenses. Depreciation, for example, is a real expense that reduces profit. ठीक है, देखा है इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस होता है उसको माइनस कर लेते हैं अपने, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कम आता है। बट जो मजे की बात है वो इट नेवर इन्वॉल्व सिंगल रुपीज और सिंगल डॉलर लिविंग द बिजनेस। इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस बेसिकली। कोई आपका इसमें कैश नहीं लग रहा। ठीक है, वो सिर्फ ऑन पेपर है जब तक आप उसको डिस्पोज नहीं करते। So you can have a company that looks profitable on paper, lekin but it is running out of the cash and heading towards bankruptcy. So this actually happens in the real life. Companies, they fall, not because they're not profitable, but because they run out of the cash to pay their bills, employees and suppliers. आपके पास पैसा ही नहीं होगा किसी को सैलरी देने का, तो कहाँ बिजनेस चलेगा आपका? So I hope you understand this now. Just before telling you the pattern of the statement of cash flows, I just want to introduce you to the three categories. Those categories are, in the cash flows you have to write the cash flow from operating activities, investing activities and financing activities. Basically cash flow क्या होता है? फ्रॉम द वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड कि कैश फ्लो का मतलब है कैश फ्लो कर रहा है। अब दो तरीके हैं, या तो कैश बिजनेस के अंदर फ्लो कर रहा है या कैश बिजनेस से बाहर फ्लो कर रहा है। अगर हम लोन लेते हैं तो कैश बिजनेस के अंदर आता है, अगर हम आपका इन्वेंट्री खरीदते हैं तो कैश बिजनेस से जाता है। ऐसा ही है। सो बेसिकली हम जब कैश फ्लो देखते हैं तो बिजनेस की काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिकली कैश होता है फ्रॉम डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ठीक है, जो आपका कैश इस्तेमाल होता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये चीज़ याद रखना, जो आप नॉन करेंट एसेट्स खरीदते हो, लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है, उनमें जो आप इन्वेस्ट करते हो, सेल करते हो, परचेज करते हो, दैट कम्स अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बेसिकली वो कैश होता है जो कि आप बोरो करते हो और आप क्या कहते हैं उसको, अपने बिजनेस को फाइनेंस करते हो। देखो, मैंने इसमें कुछ चीज़ें हैं जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का फॉर्मूला है, ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, राइट? वी हैव, बट इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी कंपनी का कोई कोई उसका कैपिटल खड़ा, मतलब वो कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है बिजनेस चलाने का? बिजनेस के लिए फाइनेंस करना पड़ेगा ना उसको। या तो कैपिटल से पैसा आता है या फिर लाइबिलिटी से पैसा आता है। ये जो दो चीज़ें हैं ये बिजनेस को चलाती हैं। ठीक है,
बिज़नेस पैसे से होता है ना, ऐसे तो नहीं है कि आपने कोई इस तरह कोई क्या बोलते हैं उसको, कि आपने कोई डब्बा रखा और डब्बे से बस कोई जादू हो रहा है, पैसे निकाले जा रहे हो, पैसे निकाले जा रहे हो, पैसे, ऐसा तो नहीं होगा, दिस वोंट हैपन, राइट? सो व्हाट विल हैपन इज़ दैट यू हैव टू पुट इन सम मनी इन द बिज़नेस, आप इन्वेस्ट करोगे, यू विल बाय गुड्स एंड देन यू विल सेल देम। इन केस ऑफ सर्विसेज़ यू विल डेवलप सम प्रोग्राम्स, यू डेवलप द स्किल सेट एंड देन यू गिव द सर्विस। ऐसा ही है, कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है कि ऐसी उठ के आ रही है, पैसा आ रहा है, ऑब्वियसली नॉट। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट हम इस चीज़ को हम मतलब इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि अब आप मैंने आपको ये चीज़ें बता दी कि कि ये तीनों एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है। नाउ कमिंग ऑनवर्ड टुवर्ड्स द पैटर्न, भाई ये सिंपल टेम्पलेट है और ये इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है? इसका डायरेक्ट मेथड भी होता है, वो हम अगली वीडियो में कर लेंगे, लेकिन बेसिकली दिस इज़ द इनडायरेक्ट मेथड। सो अब सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने लिखना होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऊपर लिखा और नीचे लिख दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्लैश ईबीआईटी, जिसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स। फिर आपका, या इसको इसको प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है? इंटरेस्ट एंड टैक्स, सॉरी, आई एम सॉरी, इंटरेस्ट एंड टैक्स, इनकम नहीं। तो बेसिकली आपकी जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें आप देखते हो कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो होता है कि जिसके बाद ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट कटता है और टैक्स कटता है। तो वो जो प्रॉफिट होता है ना, उस स्टेज तक उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये बेसिकली हमारा रॉ मटेरियल है जिसके अंदर, फॉर एग्जांपल आप कुकिंग करते हो, ठीक है? तो अगर आप कोई, फॉर एग्जांपल, फ्रूट चाट बना रहे हो, ठीक है? तो आप फ्रूट चाट के लिए क्या ज़रूरी है? एप्पल ज़रूरी है। समझो कि एप्पल की आप चाट बना रहे हो, तो आपका बेस इंग्रीडिएंट ही एप्पल है ना। अब उस एप्पल में आप चाट मसाला ऐड करो, अब उस एप्पल में यू ऐड सम, क्या, आप जज ना करना, बट वी आई यूज़ टैंग एज़ वेल, जो टैंग आता है। सो उसके अंदर आप वो टैंग ऐड करो, उसके अंदर आप चीनी ऐड करो, उसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें ऐड करो, तो ये चीज़ें ऊपर ऐड होंगी, ठीक है? और आप इसी तरह जो है वो उसके अंदर अगर आपको छिलका नहीं पसंद तो आप उसको लेस करोगे, छिलके को काटोगे, तो कुछ चीज़ें आप ऐड करते हो, कुछ चीज़ें आप लेस करते हो, तब जाके आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आता है, राइट? तो आ जाओ, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है वो ऐड। अब ऐड का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाई व्हाई डू वी ऐड थिंग्स, ठीक है? अब बेसिकली जब भी डिक्रीज इन करंट एसेट आएगा, करंट एसेट से मुराद मेरा क्या है? करंट एसेट से मेरा मुराद है इन्वेंट्रीज। व्हाट आई मीन बाय द करंट एसेट इज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है? ये आपके करंट एसेट्स हैं। तो आई होप आपको करंट एसेट्स का पता है क्या होते हैं। तो जब आपका करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल इसको इस तरह समझो कि इफ़ योर इन्वेंट्री इज डिक्रीजिंग, व्हाट डज दैट मीन? इफ़ योर इन्वेंट्री हैज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम 1 ईयर, फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, फॉर एग्जांपल आपकी 2023 के अंदर आपकी इन्वेंट्री $20 की थी, ठीक है? लेकिन 2024 के अंदर वही इन्वेंट्री आपकी 10 की हो जाती है। इसका क्या मतलब? इन्वेंट्री कम हुई, सामान कम हुआ। इसका क्या मतलब? आपने सामान बेच दिया तो कम हुआ। तो जब सामान बेचते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, कैश बिजनेस में फ्लो करता है। सो एग्जैक्टली कैश फ्लो किया बिजनेस में। तो जब कैश फ्लो हुआ तो पॉजिटिव कैश फ्लो था। तो हम उसको क्या करेंगे? उसको ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ऐसा ही है। इसी तरह इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, पहले आपके पास ये कहते हैं ट्रेड पेबल्स कम थे, ठीक है? ट्रेड पेबल्स कम थे, अगले साल आपके पास ट्रेड पेबल्स का बैलेंस ज़्यादा हो गया। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि आपने और लोगों के पैसे देने हैं। जब आपने ट्रेड पेबल्स बढ़ गए, इसका मतलब आपके बिजनेस में पैसा आया तभी पैसे वापस करने हैं ना उनके, ठीक है? तो जब आपने ट्रेड इंक्रीज हुआ आपकी करंट लाइबिलिटीज, सो यू हैव टू पे, यू हैव टू कवर दोज लाइबिलिटीज, ठीक है? तो आपके पास पैसा, यू रिसीव, इट वाज अ पॉजिटिव कैश फ्लो, ऐड किया। लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है, इसमें ऐड होता है, ठीक है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट डेप्रिसिएशन इज एन non cash expense, it was never deducted from the real cash, ठीक है? बैंक से कोई डिडक्ट नहीं हुई डेप्रिसिएशन। सो व्हाट वी डू इज दैट हम उसको दोबारा वापस ऐड करते हैं, ठीक है? नेट प्रॉफिट में, जो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्योंकि हमने पिछले इनकम स्टेटमेंट में माइनस कर दिया था उसको। अब हम उसको ऐड करते हैं क्योंकि ये पैसा तो कभी गया ही नहीं था। नाउ amortization, आई होप यू guys know about the amortization, it is basically of the intangible assets. Now what we do is that now अब बारी आई है चीज़ों को निकालने की। नाउ विल रिमूव द थिंग्स, ठीक है, फ्रॉम इट। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्री अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये पैसा समझो
पैसा बिजनेस से बाहर गया है, नेगेटिव कैश फ्लो है, ठीक है, इसीलिए इसको माइनस करते हैं। ये नेट प्रॉफिट को कम करती है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कम करती है। पैसा जा रहा है ना, तो आपके कैश को कम कर रहा है ना, ऑब्वियसली। सो इंक्रीज इन करंट एसेट, व्हाट डज इंक्रीज इन करंट एसेट? इंक्रीज इन करंट एसेट मीन्स आपने कोई चीज़ खरीदी है, जब कोई चीज़ खरीदी है तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा। सिमिलरली डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज का क्या मतलब है? पहले ट्रेड पेबल ज़्यादा थे, अब ट्रेड पेबल्स कम है, इसका मतलब है आपने ट्रेड पेबल्स पैसे दे दिया लोगों को। जब पैसे दे दिया, इट मीन्स दैट नेगेटिव कैश फ्लो निकल गया यहाँ से, ठीक है। गेन ऑन डिस्पोजल, फिर आपका इंटरेस्ट पेड और टैक्सेस पेड। आई थिंक इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे किया, कैश किया है, कैश आपका टैक्स पे किया, कैश किया है। सो व्हाट वी लर्नड इज दैट जहाँ भी पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है ऐड कर दो, जहाँ भी पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। और फिर आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा जब आप इनका सम लोगे। सो अब एक चीज यू हैव टू कीप इन माइंड, आई हैव रिटन इट ओवर हियर एज वेल, दैट इंटरेस्ट एक्सपेंस डज नॉट मीन इंटरेस्ट पेड इन कैश। हो सकता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका ज़्यादा हो, बट आपने इंटरेस्ट पे कम किया हो, ठीक है, हो सकता है ना, दैट इज पॉसिबल। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स, ये कैलकुलेट होती हैं। सिमिलरली द टैक्स जो पेड होता है इज नॉट द टैक्स चार्ज फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। जो टैक्स इनकम स्टेटमेंट है ईयर एंड पे चार्ज हो रहा होता है, बेसिकली अगले साल का होता है, वो उस साल का पेड नहीं होता, ठीक है। तो वो साल जो है यू कैलकुलेटेड, और हम इसको सीखेंगे, वी लर्न कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, एंड यू गाइज विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो, ठीक है। नोट्स बनाओ और इसको समझने की कोशिश करो कि मैं ये क्या पढ़ा रहा हूँ। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपने ये हेडिंग दी और नीचे लिखा उसमें लिखा द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आई टोल्ड यू, it only involves the purchasing and selling of the non-current assets. For example, sale proceeds from the non-current asset, that for example if you sold a building, so basically that building was an investment, right, in your business. So you sold the building, you got some money, you got the cash, so it is a positive cash flow, we'll add it, okay. And coming on to the purchasing of non-current asset, the cash, there was a negative cash flow, the cash went out of the business, you paid in order to get that non-current asset, so you'll subtract it because the money, it went out of the business. Now coming onward towards sorry now coming onwards to coming onwards towards the financing activities. Remember what I told you about the financing. Financing can be done by raising a capital, or by liabilities like taking a long-term loan. So basically, what happens is that you issue some shares. The companies issue some shares to raise the capital. That is known as the share capital, and they earn the money through that. Moreover, if moreover there are loans. So if there is a payment of long-term loan and you pay that loan, so what happens? The cash goes out from your business, so you subtract it, okay. And payment of dividends, you pay the dividend, that cash goes out of the business, so it is subtracted. So after that you'll sum it up and it will give you cash flow from the financing activities. यहाँ तक समझ में आ गई? सिंपल। अब ये सारे जो तीनों वैल्यूज थी, आई एम टेलिंग यू, द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, द कैश फ्लो फ्रॉम investing activities, and the cash flow from financing activities, you will add up these cash flow ये ऐड करोगे, ठीक है। तो जो ऐड करके आएगा दैट वुड बी नेट कैश फ्लो। ये आपके पास जो है दिस इज नेट कैश फ्लो। और फिर इसमें आप क्या करोगे, पिछले साल का जो बैलेंस था कैश का, जिस तरह अगर पिछले साल का जो बैंक का था, फॉर एग्जांपल ये बैंक है ना, इसका फॉर एग्जांपल ये 2023 का है, इसका बैंक का 190 है, लुक एट इट, ये 190 है दिसंबर 2023 का। तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस था आपका 2023 का। और फिर हमने कैश फ्लो करके पता लगाया कि इसका 210 है। ये समझो कि आपको नहीं पता ये क्या है, आपने ये सारी एक्टिविटीज़ देखी, जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करें, मैं थोड़ा सा आई जूम इट आउट, ठीक है। आपने ये सारी एक्टिविटीज़ देखी जो यहाँ पे हुई थी, ये सारी एक्टिविटीज़ देख के आपने कैलकुलेट करना है। हमने इसलिए बना रहे हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, वी आर मेकिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम टेलिंग व्हाट विल कम ओवर हियर, ठीक है। तो जब हमने सारा कैलकुलेट किया और आप ये देखोगे, जब व्हेन आई विल मेक यू सॉल्व द कैश फ्लो स्टेटमेंट व्हिच इज रिटन ओवर देयर, द आंसर विल बी 210, ठीक है। एंड यू विल गेट टू नो, यार हाँ, अब मैंने कैलकुलेट कर लिया, नाउ आई नो कि बिजनेस के पास कितना कैश है इन 2024, तो दैट वाज 210, ठीक है। तो अब समझ में आई?
you'll add this प्रीवियस बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि हम यहाँ पे जब क्वेश्चन में करेंगे 2023 का 190 था, तो 190 दिसंबर 2023 के एंड का था, यानी 2024 के स्टार्ट का था, तो 190 फिर हम यहाँ लिखेंगे, और जब वो हम नेट कैश फ्लो में एंटर करेंगे व्हेन विल ऐड इट, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, नाउ कमिंग ऑनवर्ड्स के व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो कैश इक्विवेलेंस होती है, इट इज अ हाईली लिक्विड एसिड जो कि विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कैश इन शॉर्ट टाइम विदाउट लूजिंग एनी सिग्निफिकेंट वैल्यू। सो आई होप कि you guys understood the pattern. If you guys understood the pattern, now we'll move onward towards the question. ठीक है, so just try to I want you to just take a minute and just see this statement. Okay, now we'll move onward towards the question, right? Okay, the question was, okay, this is the balance sheet that has been given you of a company known as M Limited. So the balance sheet, the first it shows the non-current asset. You all very well know how to analyze and how to extract information from the balance sheet. So you got the non-current asset at cost 3400, 3200 in 2023, 3400 over here. Accumulated depreciation was 240 by the end of 2023, and now it is 260. Moreover, the current assets you can see over here, current liabilities, non-current liabilities, we got debentures in it, and that we have to pay. And this is equity. You can very well extract the information and keep this information in your mind. Now the additional information, आज additional information देखते हैं. The first additional information is operating profit for the year amounted to 3,14,000 40,000. लो जी, पहली चीज जो हमें चाहिए थी उसने बता दी, $3,40,000 हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया, मुबारक हो. Now, the second information that we must know is that current year depreciation charge on non-current asset, it amounted to 1,40,000. All right. So ये आपको पता लग गई कि डेप्रिसिएशन कितनी है, 140, बट ये डेप्रिसिएशन करंट की है, जो उस साल की, एक्यूमुलेटेड का इसमें जिक्र नहीं है. ओके, वो हम कैलकुलेट करेंगे और वो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा. ठीक है. Some new non-current assets were purchased for $400,000 during the year, whereas some assets had a carry, which had a carry, यानी देख लो परचेज किया $400,000 का, और एक चीज, एक करंट नॉन करंट एसेट था जिसकी वैल्यू थी, कैरिंग वैल्यू वाज 80,000, और हमने कितने का सोल्ड किया, वी सोल्ड इट फॉर 70,000. अफसोस के साथ हमें $10,000 का लॉस हो गया. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द न्यू इशू ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर्स 1 जनवरी 2024 जैसे साल आपका स्टार्ट हुआ, हमने डिबेंचर्स की इशू कर दिए. डिबेंचर बेसिकली आप समझ लो एक तरीके का लोन ही होता है. ठीक है, जो कि आपको लोगों को पे करना पड़ता है. अच्छा, क्योंकि लोगों से आप कैश लेते हो या बैंक में पैसे लेते हो और उनके अगेंस्ट उन्हें डिबेंचर्स इशू करते हो, तो एक टाइम होता है उन डिबेंचर्स को आपने वापस पे आउट करना होता है. ठीक है, सो इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो चार्ज होगा इनकम स्टेटमेंट में, वो अमाउंट होगा 12,000. अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट, पहले से कोई बैलेंस वगैरह नहीं था, कुछ नहीं था, तो आपको सिर्फ ये इंटरेस्ट मिला, तो ये इंटरेस्ट पेड है. ठीक है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस था, ये आपको अब यही लिखोगे आप, कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं. द कंपनी पेड एन ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड, उसने ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड दिया 4,20,000 का, और जो लास्ट पॉइंट है 2 लाख इक्विटी शेयर्स दिए $1 के, which were issued on 1st July 2024 at $1.5 per share. तो ये चीज़ें मैंने आपके लिए रेड में कलर कर दी ताकि आपके ये इन्फॉर्मेशन रिटेन कर सको, एंड यू गाइस keep you guys can remind it when we'll do the question. Okay, brothers. तो गाइस अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, वही पैटर्न जो ऊपर था, ये इसी पैटर्न पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या ऐड करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल वील यूज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि हमें दिया. व्हाट वाज इट, इट वाज 340. हम जीरो से हटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारे जब लगेंगे तो ये बेसिकली इसमें तीन तीन जीरो ऐड होंगे. ठीक है,
ये अभी उसमें नहीं आ रहा, लेकिन चलो 3 ज़ीरोज़ ऐड होंगे, मैं ओ लगा रहा हूँ उसके लिए, ओ। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 ज़ीरोज़ ऐड होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 340। अब डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल याद करो, हम क्या ऐड करते थे जब डिक्रीज होता था करंट एसेट्स में? अपने नोट्स खोलो, जो आपने नोट्स बनाए हैं अभी तक, ओपन दैट नोट्स एंड सी द पैटर्न। मैं बार बार ओपन नहीं कर सकता। द डिक्रीज इन करंट एसेट्स इज एडेड। क्यों एडेड? आई टोल्ड यू वेरी वेल कि ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि आप क्या क्या कहते हैं, आपने जो कैश है वो बेसिकली ट्रेड रिसीव क्या होता है कि पहले आपने ट्रेड रिसीवेबल्स आपके ज़्यादा थे, आपने ज़्यादा लोगों से पैसे लेने थे, अब कम लोगों से रह गए क्योंकि आपको पैसा मिल गया ऐड। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, पेबल्स अब आपने और देने हैं, कैश आया, इसका मतलब है कितना आया? 200 माइनस 232। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रेड पेबल्स, इधर आ जाओ। 2023 में 200 थे, 2024 में 232 हो गए। तो क्या पता लगा हमें इससे? ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हुए, पैसा आया वगैरह ही हुआ। इसी तरह ट्रेड रिसीवेबल्स था, आप देख लो 2023 में ट्रेड रिसीवेबल्स 260 थे, आगे जाके कम हो गए, जिस मतलब कैश पैसा आया। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लॉस एंड डिस्पोजल, एज वी हैव सीन फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन जो कि हमें यहाँ पे दी गई थी, ये कैरिंग वैल्यू ऑफ 80,000 थी और उसको सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया 70,000 में। सो ये आपके पास 80 माइनस 70 आ गया, दैट इज 10। और फिर डिप्रिसिएशन 140 आई। अब ये मत समझना कि 140 यहाँ पे था इसलिए 140 आ गई, ये तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी। डेप्रिसिएशन टोटल जो आपको लगी थी, ठीक है, अब वो मैं आपको बताता हूँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होती है। ठीक है, इधर आओ। डेप्रिसिएशन, अच्छा, सो बेसिकली वो आपका कैरिंग वैल्यू निकालने के लिए था। सो आपका जो है वो, जो बेसिकली आपकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपने जो ऊपर निकाली थी, इसको मैं बता रहा हूँ किस तरह ही है। इस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में भी इसका रोल है। ये देखो 260 है, यहाँ पे 240 था। अब चेक करते हैं कि 240 से 260 कैसे बना। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आप दिमाग खोलना है, जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझना है। आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या था पिछले साल का? क्या था? 260, राइट? सॉरी, डिप्रिसिएशन का क्या था? 240, राइट? और अगले साल का क्या था? 2024 का 260। तो हमने 260 निकालना है किसी तरह से, हमें वो नहीं पता। तो ये मैं आपको वैसे आई एम टेलिंग यू एन एडिशनल थिंग। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 240 लिख दिया। उस साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था? 140। तो आपको आई होप सो यू नो दैट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, और इसमें आप डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते रहते हो, क्रेडिट करते रहते हो। ठीक है, जैसे जैसे आप वो, इट कैन बी ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इट कैन बी ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, ये चीज़ें यू नो इट वेरी वेल। सो अब इसको हमने बैलेंस करना है। क्लोजिंग बैलेंस क्या था? 260, हमने 260 लिख लिया। नाउ वी हैव टू बैलेंस इट, वी हैव टू मेक इट 3600। सो 120 का डिस्पोजल हो गया, यानी एक एसेट हमने बेचा कि जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड, याद करो यहाँ पे हमने एक एसेट बेचा था $80,000 की। मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी बनी है, ये इन्फॉर्मेशन किस तरह सॉलिड है। हाउ इज दिस इन्फॉर्मेशन करेक्ट, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यूज ये क्यों आ रही हैं। 80,000 वर सोल्ड फॉर 70,000, राइट? तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 80,000। आ जाओ, आप अब पता लगाते हैं कि नॉन करंट एसेट की वैल्यू 80,000 कैसे आई। 120 एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लगी। आ जाओ, ये समझ में आया ना कि टोटल डिप्रिसिएशन जो हमारी थी वो, ये डिस्पोजल 120 लगा, तब जाके हमारी ये चीज़ें बैलेंस आउट हुई। तो डिप्रिसिएशन उस साल का ये था। अब पता लगाते हैं कि उस एसेट की वैल्यू कैसे बनी। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो द नॉन करेंट एसेट का हमने एक अकाउंट बना लिया। जनाब, व्हाट वाज द बैलेंस ब्रॉट डाउन? इधर आओ, 2023 का बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या था? जल्दी 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 बताओ। दिस वाज द बैलेंस ब्रॉट डाउन 3200। लो जी, लिख लो। अब परचेजेस कितने किए? 400,000 के किए, 400 लिख दिया इस साइड पे। आई होप सो यू नो कि डेबिट होता है, राइट? जब भी एसेट इंक्रीज होता है, जब भाई आप परचेज करते हो, जो होता है। तो दूसरी साइड पे क्लोजिंग क्या आ रहा था? 3400, ऐसे ही है। तो आपने क्लोजिंग में 3400 लिख दिया। क्या था? 3400 था ना क्लोजिंग में 2024 में। तो आपने 24 मतलब 2024 के उसके अंदर, इधर आ जाओ, 3400 लिख दिया। बैलेंस करना है 200 का डिस्पोजल। अब याद करो, ये डिस्पोजल अकाउंट में जा रहे हैं दोनों,
एसेट अपनी बेस प्राइस पे जाता है, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है वो उस पे डिस्पोज होता है। ठीक है, आगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस होती है जब वो दोनों डिस्पोजल के अकाउंट्स में जाते हैं, और फिर उसकी कैरिंग वैल्यू आती है। तो इसकी एसेट की क्या वैल्यू थी जितना हमने उसको डिस्पोज किया, 200, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या निकला था, 120। कर दो माइनस, 200 माइनस 120, 80। मुबारक हो आपको, ये इंफॉर्मेशन आपकी प्रूव हो गई कि उसकी कैरिंग वैल्यू 80,000 थी। सो ये चीज़ आपको दूसरी यूट्यूब वीडियोज़ और उनके अंदर आपको उस तरह से नहीं मिलेंगी, बट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, मैं भी फास्ट का स्टूडेंट हूँ, तो आई वांट कि यू गाइस गेट दिस गुड। और ये पास्ट पेपर भी फास्ट का है, ठीक है, काफ़ी मज़े का पास्ट पेपर है। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट एज वेल, लेकिन एक बार आप करो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने पता लगा लिया, आगे आ जाओ। सिमिलरली आपकी डिप्रिसिएशन हमने 140 उधर हमें बताया हुआ था, इट वॉज 140, तो हमने कैलकुलेट करके बता दिया कि ये 140 है। नाउ मोर ओवर मूविंग टूवर्ड्स द वट वट विल सब्ट्रैक्ट इंक्रीज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ मतलब आपने पैसा दिया तो इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ, तो 20 से हमने माइनस कर दिया, इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ है। देखो, जब भी जो करंट एसेट आपका इंक्रीज होता है तो आप क्या करते हो, माइनस करते हो। देखो, पहले 320 था, 340 हो गया, इंक्रीज हुआ, आपने 20 से माइनस कर दिया। इंटरेस्ट पेड ऑब्वियसली चीज़ जा रही है ना, तो -12 था इंटरेस्ट, 12,000 हमने दिया था, तो -12 कर दिया। टैक्स पेड, ये लो। अब टैक्स पेड 70 कैसे हमने लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे तो 68 लिखा हुआ था। सो हाउ डिड वी एंडेड अप राइटिंग 70 ओवर देयर। ठीक है, नाउ लेट मी टीच यू कि ये कैसे हुआ। आई टोल्ड यू वेरी वेल बिफोर, मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि टैक्स चार्ज और टैक्स पेड डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हमें टैक्स चार्ज 68 हमारा बैलेंस बचा है, हमने टैक्स पे कितना किया है वो हम पता लगेंगे। हाउ टू फाइंड टैक्स पेड, टैक्स पेड का ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, इसके नोट्स बना लो। सबसे पहले आप अपना ओपनिंग रिटेंड लिखोगे। ओपनिंग रिटेंड क्या है, ओपनिंग रिटेंड इज़ 510। 510 में से ये आपका प्रॉफिट आया था पिछले साल का, उसमें से आपका क्या कहते हैं, जो ऐड करोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल का, तो वो आपको नहीं पता आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये नहीं पता, तो हमने ये ढूंढना है पहले। मैं बताता हूँ क्यों ढूंढना है। फिर आपने उसमें से लेस करोगे डिविडेंड्स पेड, उसमें से आपने पैसे दिए ना, डिविडेंड निकाल दिए। जनरल रिजर्व के अंदर आपने 50 डाल दिए, 50 का चेंज आ रहा है, देखो पहले 150 थे, अब 200 थे, तो मतलब आपने 50 उसमें डाल दिए। क्लोजिंग रिटेन प्रॉफिट आपका कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए। कैलकुलेट कर लो। अब ये अलजेब्रा है, इट इज़ द बेसिक अलजेब्रा कि 510 प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस 420 माइनस 50 विच शुड बी इक्वल टू 300। अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व कर लो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आया, 260। आपका योर फर्स्ट स्टेप शुड बी यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, नाउ यू हैव फाउंड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्या, अब लॉजिकल चीज़ है, अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करोगे तो आपके पास टैक्स नहीं आ जाएगा जितना आपने पे किया, आ जाएगा ना। सो इसमें लॉजिक है। सो अब आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, आपके पास तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया था बिफोर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आप सिंपल वन स्टेप करोगे, उसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे, तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना था, 12 था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 340 था, माइनस किया 328। नाउ दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और दिस वॉज वट वी कैलकुलेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करोगे तो आपके पास 68 आएगा। दिस इज द टैक्स चार्ज, नॉट टैक्स पेड। टैक्स पेड के लिए ये फॉर्मूला लिख लो। ओपनिंग 70 था प्लस चार्ज, चार्ज कितना हुआ, 68 हुआ, क्लोजिंग वॉज 68। 70 प्लस 68 माइनस 68, दैट विल कम आउट टू बी 70। तो हमने यहाँ पे 70 लिख दिया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हम लेस कर रहे हैं। ठीक है, now coming onwards to the cash flow from investing activities, it is very simple. Sale की non-current asset की it was worth of 70,000, right? Here's just look at it, 70,000 हमने यहाँ पे सेल में हमें मिले थे, तो सिंपल 70,000 बिजनेस में आया, ऐड कर दिया। परचेज की हमने नॉन करेंट एसेट की, दैट वाज $400,000। ठीक है, तो 400,000 की परचेज की, तो परचेज करते हो बिजनेस से पैसा गया, यू सब्ट्रैक्टेड इट, इसका सम करो क्या आया, -330। तो नेट कैश फ्लो आपका, जो आपका नेट कैश फ्लो था वो कितना आ गया, ये भी याद रखो, फ्रॉम, ये था फ्रॉम, अब मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है,
-330 आ गया। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये पैटर्न है। इश्यूज कितने किए हमने शेयर्स, पहले पिछले साल में 2500 थे, इस साल में 2700 थे। लो जी, इशू कर दिया उसने। ये भी चीज़ हमें ऑलरेडी बता दी थी कि हमने 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है कि हाँ 2 लाख हुए हैं। ठीक है, वो जीरोस हटे में 3 जीरोस, तो इधर से आपको शो हो रहा है कि 200 आपके शेयर्स और लॉन्च हुए। तो पहले 2500 थे, फिर 2500 200 और दिए, तो 2700 हो गए। क्या कितना फ़र्क आया, 200 और शेयर्स दिए, ऐड कर दिए। शेयर प्रीमियम, आई नो यू गाइस नो द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ इट। तो चूंकि $1.5 का था, तो $0.5 तो ऊपर मिल रहे हैं ना आपको। आपकी पार वैल्यू जो शेयर्स थे वो तो $1 के थे। तो शेयर प्रीमियम हमारा जब आप करोगे, तो पहले 200 था, अब 300 हो गया शेयर प्रीमियम अकाउंट, यानी 100 से इंक्रीज हुआ। राइट। डिवेंचर्स, डिवेंचर्स अब आपने पे करने हैं। ठीक है, मतलब पे करने होते हैं। बट यहाँ पे देखो, पहले डिवेंचर्स कितने थे, 100 थे। अब डिबेंचर्स कितने हैं, 120 डिबेंचर्स इंक्रीज हुए हैं। इन लोगों ने आपको पैसे दिए हैं, तो ये ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ऑब्वियसली ऐड होगा। और फिर डिविडेंड्स उसने आपको बता दिया, यू पेड द डिविडेंड 4,20,000। सो व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली अ डिविडेंड यू पेड। सो डिविडेंड दैट यू पेड, यू सब्ट्रैक्ट इट बिकॉज कैश से जा रहा है। सो ये आपका नेट जो आएगा, ये मैं येलो से हाईलाइट करके बता रहा हूँ, दिस इज द, यहाँ पे लिख भी लेते हैं चलो, दिस इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम, यहाँ पे मैं बस छोटा करके लिख रहा हूँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। तो आपके पास ये आ गया नेट कैश फ्लो। आई टोल्ड यू अर्लियर कि इन सबको जब आप प्लस माइनस करोगे, 450 प्लस माइनस 330 प्लस माइनस 100, तो आपके पास ये 20 आ जाएगा, यानी दैट वाज योर नेट कैश फ्लो। अब आपके पास ये नेट कैश फ्लो था इन सारी एक्टिविटीज़ का। अब यूल ऐड द बैलेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्या था, आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल। ये देखो 190 था 2023 का, प्रीवियस ईयर का। तो 190 ऐड करोगे, 210 आ गया, मैजिकल, राइट। इट्स वेरी मैजिकल, 210 आ गया। यू गॉट टू नो कि भाई इसका असल पैसा इसके पास कितना है। ठीक है, इसके पास कितना पैसा है, क्या ये अपनी लाइबिलिटीज पूरी कर सकता है। सो दैट वॉज हाउ यू रीच दिस कंक्लूजन। ठीक है, ये देखो। सो बेसिकली ये मैंने आपको सारी चीज़ें बेस से समझा दी, और दिस वाज सिंपली योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको ये बेस समझ में आ गई, सो यू कैन डू एनी क्वेश्चन। ठीक है, अब ये आपकी बेस बन गई। नाउ यूल नेवर फॉरगेट दिस थिंग्स। इसके नोट्स बना लो बहुत अच्छे से। दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट आई बेयरली थिंक एनीबडी कैन गिव यू। और ये चीज़ें अपने दिमाग में रख लेना, ये जो जो भी चीज़ें मैंने बताई। ठीक है, लो जी, ये आपका सवाल सॉल्व होता है। तो आई होप सो यू गाइस वर इंटरेस्टेड इन द टॉपिक एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हुए। और और मेरा यही है कि आई होप यू गाइस हैड फन। सो इंशाल्लाह we'll meet in the next lecture. If you have any questions, you can ask in the comment section. And uh, if you if you find this, I won't ask you to subscribe this channel. If you find it informative, if you find it that you can understand the topics very well, so I would really appreciate if you subscribe it, so that I can be my account can be visible to more people, and the more people can benefit from it. So that was it. See you later. Bye bye.